آپ کو بتائیں کہ ٹیکس ہیر پھیر کا کھیل ختم، کچی رسیدوں کے اجرا پر مکمل پابندی آئی، خزانے کا چونا لگانے والوں کی شامت آ گئی۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور میرج ہالز پر الیکٹرانک رسیدوں کا نظام لازم قرار، غفلت پر 4 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ صارفین کو نام، پتے، رسید نمبر اور QR کوڈ والی رسید دینا ہوگی۔ POS میں رجسٹرڈ شاپنگ پوائنٹ کی سخت مانیٹرنگ، بغیر ایکشن ہوگا۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور میرج ہالز میں ٹیکس ہیر پھیر کا کھیل ختم، کچی رسیدوں سے خزانے کو چونا لگانے والوں کی شامت آ گئی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کچی رسیدوں کے اجرا پر پابندی عائد کر دی۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور میرج ہالز پر الیکٹرانک رسیدوں کا نظام لازم قرار، رسید جاری نہ کرنے والوں کو 4 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر کاروبار 1 ماہ کے لیے سیل ہوگا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ صارفین کو کاروبار کا نام، پتہ، رسید نمبر اور PAR QR کوڈ والی رسید دینا ہوگی۔ کچن آرڈر سلپس اور غیر ادا شدہ بل جیسی رسیدوں پر بھی پابندی ہوگی۔ سیلز ریکارڈ میں خرد برد یا عدم فراہمی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ حکام کے مطابق خلاف ورزی پر انفورسمنٹ افسران فوری کارروائی یقینی بنائیں گے۔ POS میں رجسٹرڈ شاپنگ پوائنٹس کی سخت مانیٹرنگ، FBR نے ڈویژن بھر میں انفورسمنٹ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ FBR ٹیمیں ہر POS رجسٹرڈ اسٹور کی چیکنگ کریں گی۔ شاپنگ پوائنٹس پر آن لائن انوائسز کا اجرا یقینی بنایا جائے گا۔ جعلی انوائسز دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بغیر بارکوڈ انوائس جاری کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ POS کے ذریعے شہریوں کو ادا شدہ سیلز ٹیکس کی تصدیق ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بکھری اراضی کو یکجا کرنے کی راہ ہموار حکومت نے کسانوں کے لیے نئی سہولت متعارف کرا دی۔ وراثتی تقسیم کے درینہ جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ تقسیم سے قبل ٹکڑوں میں بٹی اراضی کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اقدام کے لیے کم از کم 25% مالکان کی رضامندی ضروری ہوگی۔ سرکولر ریونیو آفیسر 15 سب ڈویژنل اور ضلعی کلیکٹر 7 روز میں منظوری دیں گے۔ بعد ازاں تقسیم کا عمل شروع ہوگا، جبکہ ریونیو بورڈ نے نئے طریقہ کار کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ پنجاب میں بکھری ہوئی زرعی اراضی کو یکجا کرنے کا نیا طریقہ کار جاری۔ حکومت پنجاب نے اراضی کی تقسیم کے عمل کو مزید آسان، مؤثر اور منظم بنانے کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی۔ نئے طریقہ کار کے تحت پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں تبدیلی کر دی گئی۔ وراثتی یا مشترکہ اراضی کی تقسیم سے قبل چھوٹی چھوٹی اور بکھری ہوئی ہولڈنگز کو پہلے یکجا کیا جا سکے گا۔ بعد ازاں تقسیم کا عمل زیادہ سہل اور قابل عمل ہوگا۔ ایک ہی مالک کی مختلف جگہوں پر موجود چھوٹی چھوٹی اراضی کو ممکنہ حد تک ایک جگہ یکجا کیا جائے گا۔ زمین کے غیر ضروری بکھراؤ میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد کاشتکاری آسان ہوگی۔ ریونیو ریکارڈ کی دیکھ بھال زیادہ مؤثر انداز میں کی جا سکے گی۔ درخواست اور منظوری کا طریقہ آسان کر دیا گیا۔ سب ڈویژن کے کلیکٹر کو درخواست دی جائے گی۔ درخواست موصول ہونے کے بعد سرکل ریونیو آفیسر کارروائی کرے گا، جو متعلقہ مالکان میں سے کم از کم 25% مالکان کی رضامندی حاصل کرے گا۔ منظوری کا عمل مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ 15 یوم میں سرکل ریونیو آفیسر کی کارروائی ہوگی۔ 7 دن میں سب ڈویژن کلیکٹر اور مزید 7 روز میں ضلع کلیکٹر کی منظوری ہوگی۔ منظوری مکمل ہونے کے بعد متعلقہ ریونیو آفیسر فوری طور پر یکجا شدہ ہولڈنگ کی تقسیم کا عمل شروع کرے گا۔ نسل در نسل وراثتی تقسیم کے باعث زرعی زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ بکھری ہوئی زمین قبضے اور ریونیو ریکارڈ سے متعلق مسائل میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ پراپرٹی کے درینہ تنازعات ختم کرنا ممکن ہو سکے گا۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی، متعدد ٹیکس دہندگان کو پورٹل میں FBR کے نوٹسز ظاہر نہیں ہوتے۔ نوٹسز کی تعمیل نہ ہونے پر FBR جب طرفہ فیصلے کرنے لگا۔ فیصلوں سے ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو FBR کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی، متعدد ٹیکس دہندگان کو پورٹل میں FBR کے نوٹسز ظاہر نہیں ہوتے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، ٹیکس گزاروں کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ FBR کی جانب سے اگر ان کو کسی ٹیکس آڈٹ کے لیے یا دیگر کیسز کے اندر ان کو منتخب کیا جاتا ہے تو پھر ان کو جو نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں تو وہ نوٹسز ان کے آن لائن پورٹل کے اندر ان کو ظاہر نہیں ہوتے، جبکہ FBR کی جانب سے زیادہ تر نوٹسز جو ہیں وہ فزیکلی نہیں بھجوائے جاتے بلکہ صرف آن لائن سسٹم کے اندر ہی بھجوائے جاتے ہیں اور ٹیکس گزار وہیں سے وہ نوٹس دے کر اس کا جواب جمع کرواتے ہیں۔ تاہم متعدد ٹیکس جیسے سامنے آ رہے ہیں جن میں تکنیکی خامی کے باعث ٹیکس گزاروں کو وہ نوٹس ظاہر نہیں ہو پاتے اور لا علمی کے باعث وہ اپنے جوابات جمع نہیں کروا پاتے، لیکن FBR کی جانب سے ان کے خلاف غیر حاضری کے باعث یک طرفہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔
करके टैक्सदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी रिफंड्स और इनपुट एडजस्टमेंट के खिलाफ एफबीआर का क्रैकडाउन, करोड़ों रुपए का कारोबार जाहिर करके गैर कानूनी रिफंड्स लेने वाली कंपनी पकड़ी गई। महमूद एंड सन्स ने करोड़ों रुपए की गैर कानूनी इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम की। एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए मुतलका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुतलका कंपनी को शोकस नोटिस भी जारी किए गए। नोटिस की अदम तामील पर कार्रवाई की गई है। अपडेट करें आपको कि गैर कानूनी रिफंड्स और इनपुट एडजस्टमेंट के खिलाफ एफबीआर का क्रैकडाउन, करोड़ों रुपए का कारोबार जाहिर करके गैर कानूनी रिफंड्स लेने वाली कंपनी पकड़ी गई। महमूद एंड सन्स ने करोड़ों रुपए की गैर कानूनी इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम की है। बगैर बारकोड इनवॉइस देने वाले कारोबारी मराकज एफबीआर के रेडार पर। एफबीआर का पीओएस में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। डिवीजन की सतह पर इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इन्फोर्समेंट टीमें रजिस्टर्ड सॉर्ट पर जाकर पीओएस सिस्टम की चेकिंग करेंगी। पीओएस पर ऑनलाइन इनवॉइसेस का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। जाली इनवॉइसेस जारी करने वाले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई होगी। शॉपिंग पॉइंट्स पर शहरियों से वसूल सेल टैक्स की मुकम्मल तस्दीक की जाएगी। पीओएस का मकसद शहरियों के अदा करदा सेल्स टैक्स की तस्दीक करना है। एफबीआर ने कारोबारी मराकज को पीओएस कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत कर दी। आपको बताएं कि जनाब पार्क जंग के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक, 3 बार फंड्स मंजूर, तामीराती काम आगे न बढ़ सका। 2023 में 96 करोड़ की मंजूरी दी गई। साइट से कचरा उठाया, 4 दीवारी बनाई गई, फिर भी तफरीही मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। 2025 में लागत 26 करोड़ तक महदूद, इसके बावजूद एक ईंट भी न लगाई जा सकी। रवां साल मनसूबा यकसर नजरअंदाज, पार्क की साइट पर लगे पौधे भी सड़ गए। 3 बार फंड्स की मंजूरी के बावजूद जना पार्क का मंसूबा ताहाल अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। 2023 में मंसूबे के लिए 96 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। पार्क की साइट से कचरा उठाया और 4 दीवारी तामीर कर दी गई, ताहम मंसूबे पर अमली काम आगे न बढ़ सका। हमें जो है ना कोई मुनज़्ज़म जो है ना मेंटेनेंस नजर नहीं आई और इधर जो है ना पहले कचरा वगैरह इधर पड़ा होता था, उसके बाद दूसरा पौधे वगैरह भी उन्होंने लगाए, लेकिन और कचरा वगैरह उन्होंने उठा लिया। पौधे जो है ना पानी की देखभाल मुनज़्ज़म ना होने की वजह से वो गल सड़ गए और हमारी पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि इधर नज़रसानी की जाए। 2024 में फंड्स में कटौती करके 26 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिया गया। इसके बावजूद बजट 2024 में भी मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि जून 2025 में एक बार फिर 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। फंड्स की मंजूरी के बावजूद ताहाल मंसूबे की एक ईंट भी न लग सकी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि पार्क के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये टॉप प्रायोरिटी में है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका जो है हम इस पे, क्योंकि एक बहुत थारो वर्किंग इस पे पहले होगी। इस स्कीम को हमारे पास आगे इसकी 4 दीवारी हो गई है। इंतजामिया जो है इस पे, क्योंकि इदारा बिल्कुल ही नया है, हमारे पास अभी इंजीनियरिंग की टीम जो है वो अभी हम फॉर्म करेंगे या डेपुटेशन पे दीगर अफसरान आएंगे। इसका बाकायदा जो है वो हम PC1 तैयार करवाएंगे, दीगर डिटेल्स लेंगे। तो मुस्तकबिल में अभी देखिए हमारे पास टोटल जो है वो 10 पार्क है, जिसमें से एक हमारा जो है वो जना पार्क है। तो 9 पार्क हमारे डेवलप है। हमारे पास सिर्फ एक ही पार्क है जो भी डेवलप नहीं हुआ। रवां वाली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी जनाब पार्क के मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि पार्क की साइट पर लगाए गए पौधे भी सड़ गए। इस हवाले से फौरी इकदाम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। और टोबा में गोचा रोड की तामीर मरम्मत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। इलेक्ट्रिक बस पर सफर करने वाले मुसाफिर भी सड़क की तामीर से परेशान है। इलेक्ट्रिक बस के मुकर्ररा स्टॉप पर तामीराती काम जारी है। खातीन, बच्चों और बुजुर्गों को धूप में खड़े होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहबाज चौक पर शदीद गर्मी में मुसाफिरों को बस का इंतजार करना पड़ रहा है। तामीराती काम के बायस इलेक्ट्रिक बसें मुकर्ररा स्टॉप से दूर मुसाफिरों को उतारने लगी। मुकर्ररा स्टॉप मुतासर होने से इलेक्ट्रिक बस के मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का तामीराती काम के दौरान इलेक्ट्रिक बस के लिए आर्जी स्टॉप मुकर्रर करने का मुतालबा। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बस का इंतजार करना मुश्किल हो गया। तामीराती काम के दौरान इलेक्ट्रिक बस के लिए मुतबादल आर्जी स्टॉप मुकर्रर किया जाए।
दिल के मरीजों के साथ आम शहरी भी सस्ते टेस्ट करवा सकेंगे। FIC इंतजामिया का मुखैर हजरात के ताउन से ब्लड लेबॉर्ट्री बनाने का फैसला। FIC के मेन गेट के करीब ब्लड लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। FIC डॉक्टर नदीम कहते हैं कि लेबॉर्ट्री के क़याम से आम शहरी मुस्तफीद होंगे। अमराज कल्ब के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला आम शहरी भी खून के महंगे टेस्ट सस्ते दामों करवा सकेंगे। लेबॉर्ट्री से हासिल आमदन मरीजों की फलाह पर खर्च होगी। कौन बनेगा एक दिन का कमिश्नर? मुनफरद मुकाबले का ऐलान। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख का होनहार तलबा और तालिबात के लिए बड़ा ऐलान। डिवीजन पर के तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबला कराने का फैसला। कामयाब तालिब इल्म को एक दिन के लिए एजाजी कमिश्नर बनाया जाएगा। डॉक्टर इमरान हामिद शेख बतौर डिप्टी कमिश्नर भी मुनफरद इकदाम कर चुके हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा को एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया था। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कौन बनेगा एक दिन का कमिश्नर। मुनफरिद मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख का होनहार तलबा और तालिबात के लिए बड़ा ऐलान। डिवीजन भर के तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबला कराने का फैसला कर लिया गया। कामयाब तालिब इल्म को एक दिन के लिए एजाजी कमिश्नर बनाया जाएगा। डॉक्टर इमरान हामिद शेख बतौर डिप्टी कमिश्नर भी मुनफरिद इकदाम कर चुके हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा को एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया था। अपडेट करें आपको कि कौन बनेगा एक दिन का कमिश्नर। मुनफरिद मुकाबले का ऐलान किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख का होनहार तलबा और तालिबात के लिए बड़ा ऐलान। डिवीजन भर के तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबला कराने का फैसला किया गया है। कामयाब तालिब इल्म को एक दिन के लिए एजाजी कमिश्नर बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद बेग। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में होगा एक बड़ा मुकाबला और मुकाबला होगा कमिश्नर फैसलाबाद बनने का, यानी कौन बनेगा एक दिन का डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि डिवीजन भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस में मौजूद तलबा और तालिबात में मुकाबले करवाए जाएंगे, जो कि हेल्दी मुकाबले होंगे, जिनमें ना सिर्फ तहरीरी मुकाबला जात बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के हवाले से भी मुकाबले होंगे। और पहले नंबर पर पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म या तालिबा को जो है एक दिन का आज़ादी कमिश्नर फैसलाबाद बनाया जाएगा। माजी में भी डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर इमरान हामिद शेख जब फैसलाबाद में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात रहे तो मुख्तलिफ मुकाबलों के बाद पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा को, जिसका नाम मरवा बसरा था, एक दिन का आज़ादी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। अब फिर एक बार दोबारा वही प्रैक्टिस की जाएगी, लेकिन इस बार मुकाबला होगा कि कौन बनेगा कमिश्नर फैसलाबाद। डॉक्टर इमरान हामिद शेख की जानिब से ऐलान किया गया है कि जल्द डिवीजन भर के तमाम स्कूलों और कॉलेजेस के दरमियान ये मुकाबले करवाए जाएंगे और पहली पोजीशन पर आने वाले को एक दिन का आज़ादी कमिश्नर फैसलाबाद बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने शहरियों को ऑनलाइन फ्रॉड से खबरदार कर दिया। PTI हुकाम के मुताबिक नौसरबाज इनामी रकम का लालच देकर मशकूक लिंक्स पर क्लिक करवाते हैं। लिंक पर क्लिक के जरिए बैंक अकाउंट्स की मालूमात हासिल की जाती है। शहरियों को मुश्तबा नंबर से आने वाली कॉल या मैसेज को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। मजीद जानते हैं मिर्जा कामरान सईद से। जी मिर्जा कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, PTI ने बड़ी अहम हिदायत जारी की हैं शहरियों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। जैसा कि PTI ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये बताया है कि जराइम पेशा अनासर शहरियों को मशकूक लिंक्स भेजते हैं, कॉल्स के ज़रिए, SMS या फिर किसी और तरीके से लिंक भेजते हैं और शहरियों को उकसाया जाता है कि वो इन लिंक्स पर क्लिक करें। जैसे ही शहरी इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और उनकी जो मालूमात हैं, बैंकिंग डिटेल्स, वो हैक कर ली जाती हैं, उन तक रसाई हासिल कर ली जाती है और इस तरह शहरियों को माली फ्रॉड का निशाना बना दिया जाता है। इस हवाले से PTI का ये कहना है कि शहरी किसी भी सूरत में ऐसी मशकूक नंबर से आने वाली कॉल या फिर किसी मैसेज या लिंक पर जो है वो क्लिक ना करें। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। टोबा में जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए ज़िले इंतजामिया की तैयारियां जारी। यौम आज़ादी पर फुटबॉल और कबड्डी के नुमाइशी मैचेस करवाए जाएंगे। तकरीबात पे शहरियों की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के भी इंतजाम। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आलम शेर। टोबा टैक्सिंग की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन अब एक फ़ैसला किया गया है यौम आज़ादी वाले दिन जो है वो एक इवेंट का इनकाद करवाया जाएगा। इवेंट के इनकाद में नुमाइशी मैचेस भी करवाए जाएंगे।
नुमाइशी मैचेस में ज़िला टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी खिलाड़ी फुटबॉलर और कबड्डी के प्लेयर्स होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताएगा कौन कौन से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और मैचेस के इनामात क्या होंगे और इस जो इवेंट करवाया जा रहा है इसका क्या मकसद है? जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे टोबा टेक्सिंग में बड़ा ही शानदार एक नुमाइशी मैच कबड्डी का होता है, उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त मैच होता है हॉकी का, अलॉन्ग विद हम और फुटबॉल का भी एक मैच ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी सरपरस्ती फरमाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहबा फरमाएंगी इसकी सरपरस्ती और CO ज़िला काउंसिल साहब। और इसके हवाले से बताता चलूँ कि हमारे पिछले सालों की रवायत ये है कि भी पाकिस्तान भर के जो बड़े नामी ग्रामी खिलाड़ी टोबा टेक्सिंग से बिलोंग रखते हैं वो आपस में खेलते हैं। बड़ा ही शानदार मैच होता है, आवाम को देखने को एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा और बड़ी गहमा गहमी होगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि योम आज़ादी के हवाले से तकरीबात करवाई जाएंगी। योम आज़ादी वाले दिन नुमाइशी मैचेस भी करवाए जाएंगे, फुटबॉल के, कबड्डी के और हॉकी के मैचेस भी करवाए जाएंगे। जितने भी नामवर प्लेयर हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और योम आज़ादी को जो है भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आलम।